Good morning, children. Today I am going to start new chapter, that is chapter 9 in science, and the name of chapter is Animals, Habitat and Adaptation. Animals live everywhere on earth. They are found in the deep oceans and also on the high mountains. They are found in hot deserts as well as polar regions. The surroundings or the environment in which an animal or a plant lives is called its habitat. A habitat is the natural home of a living thing. It provides the living thing food, water and the right kind of environment to live, grow and multiply. Animals live everywhere on earth. They are found in the deep oceans, in the forest, in the high mountains, in deserts and also in the polar regions. What are polar regions? On earth there are polar regions, North Pole, South Pole. Area between these polar regions, between the North Pole and the South Pole are called the polar regions. And also they are called Arctic Circle, Antarctic Circle. Okay. So in these polar regions and some polar regions it is very cold and animals live on that climate also. They have to survive. They adapt themselves to that climate. The surroundings or the environment in which an animal or plant lives is called its habitat. A habitat is the natural home of a living thing. This habitat provides that living thing place to live, food, water and the environment in which they can live, they can multiply and they can grow. Grow means they grow from younger to older, they multiply means they give birth to their young ones. जानवर इस धरती पे एनिमल्स मीन्स जानवर वे सब जगह रहते हैं. जानवर गहरे समुद्र में भी रहते हैं और ऊंचे पर्वतों पर भी रहते हैं और डेजर्ट्स में भी रहते हैं, मतलब रेगिस्तान में भी जानवर रहते हैं और जानवर पोलर रीजन्स में भी रहते हैं. पोलर रीजन्स मतलब नॉर्थ पोल, साउथ पोल जो आपने अपनी ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, और आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल्स ये सब पोलर रीजन्स हैं. इन पोलर रीजन्स में कुछ पोलर रीजन्स में बहुत ज़्यादा ठंड होती है और ऐसे वातावरण में भी जानवर रहते हैं. ठीक है. सराउंडिंग या एनवायरनमेंट जिसमें वो जानवर रहते हैं उसे हम बोलते हैं, जानवर या प्लांट रहते हैं उसे हम बोलते हैं हैबिटेट. सराउंडिंग मीन्स आपके चारों तरफ का सराउंडिंग. अगर कोई जानवर रेगिस्तान में रहता है, डेजर्ट में रहता है, तो उसके चारों तरफ के सराउंडिंग में क्या आएगा? नीचे तो रेत रहती है, बालू रहता है और आगे कुछ नहीं रहता है, बहुत कम इक्का दुक्का पेड़ पौधे रहते हैं, तो वो उसकी सराउंडिंग है. और एनवायरनमेंट क्या है? रेगिस्तान का एनवायरनमेंट, क्लाइमेट जो होता है, वातावरण कैसा रहता है? बहुत गर्म रहता है दिन में और रात में ठंडी हो जाती है, तो वो उसका एनवायरनमेंट है. तो कोई जानवर या कोई प्लांट, कोई एनिमल या कोई प्लांट जिस सराउंडिंग और जिस एनवायरनमेंट में रहता है उसे उसका हैबिटेट कहते हैं. ठीक है. एनिमल या प्लांट जिस सराउंडिंग और जिस एनवायरनमेंट में रहता है उसे उसका हैबिटेट कहते हैं. हैबिटेट जो है उसका होम होता है, मतलब उसका एक तरह से घर होता है. उस लिविंग थिंग, उस जीव जंतु का वह हैबिटेट घर होता है. वह हैबिटेट उस जीव जंतु को भोजन देता है, वाटर देता है और वैसा वातावरण या वैसी परिस्थितियां देता है जिस परिस्थिति में वह रह सकता है, ग्रो कर सकता है और मल्टीप्लाई कर सकता है, मतलब एक से ज़्यादा को जन्म दे सकता है. ओके. या हैबिटेट के बारे में. Different habitats have different living conditions. Animals survive in those conditions because of their adaptation. When living conditions do not remain suitable for an animal species, the whole group dies out and become extinct. In different habitats में they have different living conditions. Okay. Animals survive in these conditions because they adapt themselves according to that condition. When living things do not remain suitable for, when that condition is not suitable for that animal species, then that species dies out and become extinct like dinosaurs. डिफरेंट इन हैबिटेट्स, डिफरेंट तरह के हैबिटेट्स होते हैं और उनकी लिविंग कंडीशंस भी डिफरेंट होती है. रेगिस्तान अलग, उनकी कंडीशन अलग होगी और किसी पोलर रीजन में रहने वाले की हैबिटेट और लिविंग कंडीशन अलग होगी और डेजर्ट में और फॉरेस्ट में रहने वाले की, लैंड में रहने वाले की लिविंग कंडीशंस और हैबिटेट अलग होंगे.
एनिमल जो है अपने आप को इस लिविंग कंडीशन में सरवाइव करता है, मतलब अपने आप को जिंदा रखता है। कैसे जिंदा रखता है? बिकॉज ऑफ एडेप्टेशन। एडेप्टेशन मीन्स अनुकूलन, अपने आप को उस परिस्थिति के अनुकूल बना लेता है या अपने आप को उस परिस्थिति के अनुकूल ढाल लेता है, ये उसका एडेप्टेशन है। अगर वह जानवर उसको अपने को उस परिस्थिति के अनुकूल नहीं ढाल पाता है तो वह जिंदा नहीं रह पाता है, वह मर जाता है और उसकी पूरी जाति जो है वो खत्म हो जाती है। जैसे डायनासोर्स पहले पृथ्वी पे थे तो उन्होंने जब उनको उनके अनुसार की लिविंग कंडीशन, वातावरण, परिस्थिति मिली तब तक वो जिंदा रहे। जैसे ही अर्थ की कंडीशन बदली, अर्थ ने अपनी कंडीशन, अर्थ की कंडीशन में, परिस्थितियों में चेंज आया या बहुत गर्म हो गई होगी धरती या जो भी चेंज आया होगा, उस परिस्थिति में वह डायनासोर्स अपने आप को नहीं ढाल पाए और इस वजह से वे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए, मतलब विलुप्त हो गए। ठीक है, तो जैसी कंडीशंस, अगर जानवर अपने आप को उस कंडीशन में ढाल लेते हैं तब वह जाति बची रहती है और मैक्सिमम जानवर अपने आप को उस कंडीशन में, उस लिविंग कंडीशन में ढाल लेते हैं या उसके लिए कुछ करते हैं, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, सर्वाइव रखने के लिए वे कुछ करते हैं आगे, जो आपको बताएंगे, जैसे माइग्रेशन, कैमोफ्लेज वगैरह। ओके, तो ये होता है इस तरह, इसको बोलते हैं एडेप्टेशन। ठीक है, एडेप्टेशन अपने आप को उसके अनुकूल ढाल लेना, उसे हम बोलते हैं एडेप्टेशन। ओके, जो जानवर अपने आप को ढाल लेते हैं वो सरवाइव करते हैं उस हैबिटेट में और एनवायरनमेंट में, और जो नहीं ढाल पाते हैं वे विलुप्त हो जाते हैं, वे, उनकी पूरी स्पीशीज, उनकी पूरी जाति खत्म हो जाती है। ओके, नाउ फॉर टुडेज क्लास दिस मच। इन नेक्स्ट क्लास I will discuss rest of this page number 69 and adaptation. We will discuss adaptation also in next class. Okay, till then stay safe, stay at home, keep on learning.